Okay, so last day we have discussed up to the periodic law, right? The modern periodic law and the Mendeleev's periodic law. We have discussed these things. So today we'll continue further. So the topic that we are going to discuss today, the types of elements in modern periodic table. So the types of elements in modern periodic table. All right. In the last class, as we have discussed, that the elements in the modern periodic table can be classified into three, basically not three actually, four classes. Okay, that is first of all S block elements, okay, D block elements, P block elements, and F block elements. So one by one we are going to discuss all these four kinds of elements, okay, their properties as well. চলো একটা একটা করে নাম্বার ওয়ান এস ব্লক এলিমেন্টস S block elements. Am I audible, everyone? Sir. Okay, totally. Okay, first of all, what do you mean by S block elements? Last day we have discussed what is S block elements or what elements are called S block elements. Okay, so we know that already the group 1 and group 2 elements are called S block elements. So group 1 and don't write 1 like this, simply 1. Group 1 and group 2 elements are known as S block elements. Now the question arises, why do they called the S block elements? Because their valence shell ends with a NS1 or NS2 electronic configuration. So that is why we will call them S block elements. Okay. The second property of these S block elements are they are metal, rather they are soft metals, have low melting point and boiling point. They are soft metal having some low melting point and boiling point. Okay. Number three, they impart. Oh, just a moment. Just a moment. Hmm. They impart characteristic color to the flames. But yes, there is an exception. Except बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. इसका मतलब इन लोगों की जो सॉल्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं. मतलब वो सॉल्ट को लेके अगर हम फ्लेम में पकड़ेंगे तो वो कलर शो करेंगे, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट कोई कलर शो नहीं करता. ओके, नेक्स्ट,
Number 4, they are highly reactive. Metals, they are highly reactive metals. Okay, with low ionization enthalpy. With low ionization enthalpy. अभी ionization enthalpy किसको बोलेंगे वो हम देखेंगे। इस ये जो प्रॉपर्टीज होंगे उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे सब। नंबर 5, alkali metals like potassium, rubidium, cesium are used in photoelectric cells. These are used in photoelectric cells. Now the question is, why do they use in photoelectric cells? The reason is their ionization enthalpy is very low. So that is why हम लोग इसको photoelectric cell में use करते हैं. Number 6, they show +1 or +2 oxidation state. They show +1 or +2 oxidation state. That means their charge will be either +1 or +2. Number 7, they are strong reducing agent. They are strong reducing agent. Okay, so these are the properties of the elements of S block. Now we will move towards the P block. P block elements. One by one. So why do we call them P block elements? The reason is their electronic configuration of the valence shell. It is either NS2, NP1, NP2, NP3, NP4, like this up to NP6. Okay. So due to this electronic configuration, they are called the P block elements because they have got P orbital, okay, which is to be filled with the electrons at last. So what are the characteristics of these P block elements? Let me show you. First of all, we need to remember some names. So these elements are basically from group 13 to group 18. All right. The group 13 elements are known as boron family. Group 14 elements are known as carbon family. All right. Group 15 are known as nitrogen family, or it is also known as nicogens. Remember the name nicogens. Group 16 elements are known as oxygen family or chalcogens. Group 17 elements are known as halogens. And group 18 elements are known as noble gas. Understood everyone? 13, 14, 15, 16, 17, 18. First of all, these are the names of the elements. Okay, these are the name of the respective groups in this P block. Okay, now the second point, number 2, in this P block elements only. All the orbitals
in the noble gases are completely filled. वो जो नोबेल गैस होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, उनका जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, मतलब NH2 NP6 ऐसा होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ ऑब्वियसली एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम में बस NH2 मतलब 1s2 ही होता है, लेकिन बाकी में p ऑर्बिटल जो है वो भी फिल्ड हुआ होता है। ओके, नंबर 3, the elements of group 16 and group 17 have high negative electron gain enthalpy। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर किसी भी तरीके का एनर्जी अगर नेगेटिव में आ जाए, दैट इज वेरी वेरी स्टेबल। ओके, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव में है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली वो एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 4, the non-metallic character increases. The non-metallic character increases अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे along the periodic table, if we move from left to right, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा एंड मेटालिक कैरेक्टर ऑफ कोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अभी ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है या फिर जो पी ब्लॉक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इनमें सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है। so this block contain this block contains solid, liquid and gas। Okay, every single kind of elements are present in this block। All right, number 6, most of them are non-metal। Most of them are non-metal। In S block, most of the elements were metal, but in this case, most of the elements are non-metal। All right, number 7, some of them show variable oxidation state। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज एक एलिमेंट +2 उसके साथ साथ वो +3 भी दिखाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल Sn यानी कि टीन, टीन +2 भी दिखाता है, उसके साथ साथ +4 भी दिखाता है। सो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट टीन में पॉसिबल है। ओके, इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हो गया एस ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक, अभी जाएंगे डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्षितिज, नहीं सर। बाकी लोग कितना को आदित्य को डाउट? नो सर। अच्छा, गुंजन को कोई डाउट? ओके, नाउ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
अभी डी ब्लॉक भी पढ़ना है, उसके बाद एफ ब्लॉक भी पढ़ना है। तो डी ब्लॉक पढ़ लेते हैं जल्दी से जल्दी। डी ब्लॉक मीन्स द एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, राइट। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम क्यों बोलते हैं? The reason is once again their electronic configuration. The electronic configuration is something like this: n minus 1, d 1 to 10, ns 0 to 2. So now ns तो basically filled रहता है in most of the cases, but d electrons मतलब n minus 1 d orbital में इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऐड होता है। अगर तुम लोग एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक लिखे हो तो तुमको ये ऑलरेडी पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन तुम 3D में आहिस्ता आहिस्ता इनकॉर्पोरेट करोगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5 like this. Okay, so basically due to this electronic configuration we call them d block elements. What are their uh, just a moment. হ্যাঁ বলো বলো। না না খাবো না, পড়াচ্ছি। Okay, number one, they are metals. They are all metals. यहाँ पे मेटल को छोड़ के, मतलब इस डी ब्लॉक में मेटल को छोड़ के और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम फॉर्म कलर्ड सॉल्ट्स। बहुत ही दो तीन ऐसा एलिमेंट है इस डी ब्लॉक में जो कलर्ड सॉल्ट नहीं बनाते। ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट का सॉल्ट कलर्ड ही होता है। आयरन का ले लो, किसी भी तरीके का सॉल्ट आयरन का, दैट इज कलर्ड। कॉपर का, क्रोमियम का, मैंगनीज का, तो किसी भी तरीके का ले लो वो कलर्ड ही होंगे, ठीक है। नंबर 2, they are good conductors of heat and electricity. They are good conductors of heat and electricity. Okay. Number 3, most of them are malleable and ductile. Most of them are malleable and ductile. So malleable ductile मतलब मेटल का जो टिपिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, वो सब चीजें इन डी ब्लॉक के मेटल्स में देखने को मिलते हैं। एस ब्लॉक के मेटल्स में उतना अच्छा नहीं दिखने को मिलता, लेकिन डी ब्लॉक का जो मेटल्स है मतलब आयरन, ठीक है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और बहुत सारे हैं, तो इनमें जनरली वो डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ये सब चीजें देखने को ज्यादा मिलता है। ओके, नेक्स्ट, they are moderately reactive. They are moderately reactive. मतलब एस ब्लॉक का जो मेटल्स होते हैं उतना जितना रिएक्टिव ये नहीं है, उनसे थोड़ा कम रिएक्टिव है। ओके, लेकिन रिएक्टिव ऑब्वियसली है बट उनसे थोड़ा कम रिएक्टिव है। ओके, नंबर 5, दे हैव कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। मतलब इनमें एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होता है जिससे हम इनको एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शन में इन एलिमेंट्स को एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। ओके,
So these were all about the D block elements. Now we will move towards the F block elements. Okay, F block elements. अगर पीरियोडिक टेबल देखा कभी तो तुमको ये देखने को मिलेगा कि पीरियोडिक टेबल के नीचे दो ब्लॉक होते हैं, मतलब ऐसा दिखता है ना पीरियोडिक टेबल, दिस इज एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, उसके ऊपर एक पी ब्लॉक और नीचे दो ब्लॉक मिलता है, याद आ रहा है? ये जो नीचे वाला दो ब्लॉक होता है वो उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली वो होता किधर है ये एफ ब्लॉक? ये एफ ब्लॉक होता है कुछ यहाँ पे, इस जगह पे दोनों एफ ब्लॉक होते हैं बेसिकली एक्चुअल में। ओके, ये ऑल द एलिमेंट्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर रीजन। वहां पे हम दिखा नहीं सकते, इसीलिए हम बाहर इनको अलग से शो करते हैं। ओके, सो why they are called F block elements? Because of their electronic configuration. Here also the general electronic configuration is something like this: n minus 2 F 1 to 14, okay, n minus 1 D 0 to 1 and ns2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एक करके F इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ता जाता है, तो इसीलिए हम इसको F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। Okay, what are the properties of these S block elements? First of all, they all are metals, exactly as the D block elements. So they are all metals. Okay. Secondly, they are divided into two categories. They are divided into lanthanoid and actinoid। अभी लैंथेनॉइड किसको बोलेंगे? देखो, ये पहला वाला जो सीरीज है उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड, ये दूसरा वाला जो सीरीज होता है उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड। सो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड किसको बोलते हैं, समझ में आया? पीरियोडिक टेबल ले लो, एक ऐप ही डाउनलोड कर लो, देखना नीचे लैंथेनॉइड है, उसके नीचे है एक्टिनॉइड। तो बेसिकली ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों ही कहाँ पे है? कुछ इस जगह पे है पीरियोडिक टेबल के। ओके, नेक्स्ट property, that is number 3, the actinoids show large number of oxidation states. The actinoids show large number of oxidation states। लैंथेनॉइड्स में, सॉरी एक्टिनॉइड्स में बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इनके वेरिएशन होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, सो बेसिकली दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद हमको तीन चीजें थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना होगा। क्या? क्लास ऑफ कंपाउंड्स, सॉरी क्लास ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने टाइप के एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। बेसिकली 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आज तक कितना डिस्कवर हुआ? 118, जो 3 क्लास में डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं मेटल, एक को हम बोलते हैं नॉन मेटल, एक को हम बोलते हैं मेटलॉइड। तो अभी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इन तीनों को लेके थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा। सो एक एक करके सबसे पहले आएगा मेटल।
सबसे पहले आएगा मेटल। देखो, अभी मेटल मतलब मेटल क्या है, बेसिकली उनका प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेटल्स आर ऑन दी, कहाँ पे है वो पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, एंड द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बीच में। पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में है मेटल, जितना भी है। मेरी बीच पोर्शन में मतलब डी ब्लॉक में भी मेटल है, उसके बाद नॉन मेटल्स आते हैं। ओके, so first of all metals are on the left hand side and the middle of the periodic table. Okay, secondly, a very few metals are on the p block। p ब्लॉक में बहुत कम मेटल्स होते हैं, बहुत ही कम। नंबर 3, metals are usually hard and solid, hard solid at room temperature, but obviously एक एक्सेप्शन तो है, मरकरी। मरकरी इज अ लिक्विड। नंबर 4, metals have, or they have, लिख दो, they have the properties of malleability and ductility, malleability and ductility। तो malleability का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? malleability का मतलब होता है beaten into sheets, और ductility का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब मेटल्स को हम वायर में थोड़ा ड्रॉ ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब खींच के लंबा तार बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो ड्रॉन इनटू वायर्स। और मेलिएबिलिटी का क्या मतलब बोला? बीटन इनटू शीट्स। तो शीट बनाना या फिर वायर बनाना, ये प्रॉपर्टीज होते हैं मेटल्स में। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है मेटल्स में, नंबर 5, दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होता है मेटल के पास। मेटल कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक, दैट मींस दे फॉर्म basic oxide. This is also very important, keep that in mind. The oxides of metals are basic in nature, you know that I guess, but this is once again needed, later on हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। नंबर 7, metallic character increases down the group, metallic character increases down the group। मतलब एक पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। मतलब नीचे वाला जो एलिमेंट्स है दे आर मोर, मोर, दे हैव मोर मेटेलिक कैरेक्टर, और ऊपर के जो मेटल होते हैं उनके मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा सा कम होते हैं। ओके,
तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो हमको पहले से ही पता था ऑलरेडी, बट स्टिल हम फिर से एक बार डिस्कस किए। उसके बाद नॉन मेटल में जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल, एक एक करके। नंबर 1, देखो, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मेटल का था। तो नॉन मेटल कहाँ पे होते हैं? नॉन मेटल एकदम जितना तुम राइट हैंड साइड में जाओगे पीरियोडिक टेबल का, तुमको मिलेगा नॉन मेटल। ओके, नॉन मेटल्स आर on the right hand side of periodic table। हाइड्रोजन भी इसमें इंक्लूडेड है। नंबर 2, they have 4 to 8 valence electrons। इसमें एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, जिसके पास सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। Okay, there is an exception, hydrogen, which has got only one valence electron। Number 3, they exist as solid, liquid and gas। ओके, अभी एक नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड होता है, कौन बताएगा? एक ही पढ़े हो जिंदगी में, उसी का नाम मैं पूछा। टेल मी अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड। किसी भी एक नॉन मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड है। अगर तुमको आता है तो तुमको एक ही नाम तुम पढ़े होगे। सर ब्रोमाइन। हाँ बोलो। ब्रोमाइन। ब्रोमाइन नहीं, उसका नाम होता है ब्रोमीन। ओके सर। सो ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन नेचर। एक ही तुमको मिलेगा ऐसा नॉन मेटल, और कोई भी नॉन मेटल तुमको नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। बट यस, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि डायमंड। डायमंड इज एन एक्सेप्शन। डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ओके, बट इट इज एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट, नंबर 5। नंबर 5, they are poor conductors of heat and electricity। They are poor conductors of heat and electricity। अच्छा, इनमें एक्सेप्शन भी है, जैसे कि ग्राफाइट। ग्राफाइट is a very nice conductor of heat and electricity, that is an exception। Okay, number 6, they are neither malleable nor ductile। They are neither malleable nor ductile। ये मेरिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते। ओके, नंबर 7, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर decreases if we move down a group। मतलब एक ही किसी ग्रुप में अगर पीरियोडिक टेबल के हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर धीरे 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 डिक्रीज करता जाएगा।
जैसे कि हमने देखा मेटल में भी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा जैसे, वैसे ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। नंबर 5, नंबर नंबर 7 तक हुआ, हाँ नंबर 8। दे मोस्टली फॉर्म दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड इन जनरल। तो नॉन मेटल कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कि मेटल बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, वैसे ही नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर बेसिकली बॉर्डर लाइन होता है। अगर हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे, ओके, तो उनके बीच में हमको मिलेंगे मेटलॉइड, जिनमें ऑब्वियसली मेटल की भी प्रॉपर्टीज होते हैं, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, so they are at the border line. They are at the border line of metals and non-metals. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो बॉर्डर लाइन होता है वो होते हैं मेटलॉइड्स। ओके, दे रिजेंबल विथ both मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब मेटल की प्रॉपर्टी भी उनमें दिखेंगे और नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो भी उनमें दिखेगा। ओके, हर तरह के प्रॉपर्टी उनमें दिखने को मिलते हैं। नंबर 3, कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। कौन सा है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ओके, टेलुरियम, दे आर मेटलॉइड्स। ये है मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, most of them are semiconductors. Most of them are semiconductors। अभी semiconductors क्या होता है? देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। जो नहीं कर पाते उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जो थोड़ा बहुत करता है, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, उनको ही हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो इन एलिमेंट्स को, मतलब मेटालॉइड्स को, हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। आया समझ में? अच्छा, अभी मैं बार बार एक चीज बोल रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या बोलेंगे? देखो, एक एटम, आइदर वो इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनेगा, और वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटायन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनने के बाद या फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ के कैटायन बनने के बाद उसके ऊपर जो चार्ज रहता है, दैट इज बेसिकली इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इट इज द चार्ज ऑन द एटम, it is the charge on the atom after losing or gaining electron, after losing or gaining electron।
मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके बाद इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल, सपोज हम फ्लोरीन का एग्जांपल ले ले। फ्लोरीन में होता है 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन का टेंडेंसी होता है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, तो इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोरीन बनेगा F-। सिमिलरली सोडियम, जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के बनेगा Na+। सो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 और सोडियम का होता है +1। क्यों? ये जो बनेगा बेसिकली इलेक्ट्रॉन देने के बाद या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, उसी को बेसिकली हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। आया समझ में? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके। तो अभी कुछ चीजें हमको जानना है, अभी कुछ डेफिनेशन या फिर पैरामीटर्स हमको जानना है। एक एक करके हम वो डेफिनेशन या फिर पैरामीटर्स जानने की कोशिश करेंगे। तो द फर्स्ट पैरामीटर दैट वी नीड टू नो इज द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसको बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस, देखो, न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल होगा या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उनका डिस्टेंस, इसी को हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। मतलब द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस from the center of the nuclei, from the center of the nuclei या फिर न्यूक्लियस to the outermost shell of electron। मतलब आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस होता है, कहां से? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ओके। आयोनिक रेडियस किसको बोलेंगे? एक आयन में बेसिकली, एक आयन में न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे आयनिक रेडियस। ओके। और कोवैलेंट रेडियस एक और पॉइंट है, कोवैलेंट रेडियस। ये क्या होता है? देखो, कोवैलेंट रेडियस मतलब इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू न्यूक्लियाई। तो जस्ट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, it is the half of the distance between the centers of the nuclei, between the centers of the nuclei of two atoms, of two atoms जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग से अटका हुआ है। तो सपोज दिस इज एन एटम एंड दिस इज अनदर एटम। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ओके, डिस्टेंस जो होगा इनके बीच का, बेसिकली ये डिस्टेंस को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। ओके। आयनिक रेडियस का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। आयनिक रेडियस मतलब एक आयन में न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा, जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, उसी को हम बोलेंगे आयोनिक रेडियस। राइट। अच्छा, अभी और भी कुछ
पैरामीटर्स हमको जानना है, जैसे कि बार बार मैं बोल रहा था ये जब डिस्कस कर रहा था, दिस इज द फर्स्ट थिंग इज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोले? आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हम किसको बोलेंगे? तो देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब, सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, ओके, वो एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, मतलब एलिमेंट को द कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन में कन्वर्ट करना है और एक इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको जो एनर्जी सप्लाई करना होगा बाहर से, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एलिमेंट है गैस फॉर्म में, उसमें कुछ एनर्जी देंगे, वो एलिमेंट मेटल में कन्वर्ट होगा, मतलब सॉरी मेटल का कैटायन में कन्वर्ट होगा, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या बोले? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron. It is the energy required to remove an electron. कहाँ से? From an isolated gaseous atom in its ground state. एक आइसोलेटेड गैसियन एटम को उसके ग्राउंड स्टेट में लाके उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हम जितना एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे उसी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, एक इलेक्ट्रॉन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी सप्लाई करेंगे उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर IE1। दूसरा इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना हो तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरे को अगर रिमूव करना हो तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सो ऑन। ओके, Sir, बोलो sir, बोलो repeat once. बोलो बोलो बोलो। Sir, repeat once more. दिस वन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Yes, yes, sir. ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ইজ দ্য এনার্জি যেটা আমরা একটা মেটাল এর উপর অ্যাপ্লাই করি, ঠিক আছে? we apply a certain amount of energy on a metal। मेटल किस फॉर्म में है? मेटल, या मेटल क्या, कोई भी एलिमेंट बोल दो, तो एलिमेंट कौन से फॉर्म में होगा? एलिमेंट होगा गैस फॉर्म में। तो वो एलिमेंट गैस फॉर्म में है एंड वी आर सप्लाइंग सम एनर्जी, व्हाट इज हैपनिंग? द एलिमेंट will be converted into its corresponding ion, मतलब कैटायन। तो एक एलिमेंट को उस गैस फॉर्म में बेसिकली उसके कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए हम जो एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, गैस फॉर्म में एक एलिमेंट को उसके कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से सप्लाई करेंगे उसी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बुझा গেল? Yes, sir. Okay, the next is electron gain enthalpy, which is exactly opposite to that of ionization enthalpy. Next page, electron gain enthalpy, electron gain enthalpy। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम किसको बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, exactly it is exactly opposite to that of ionization enthalpy।
मतलब एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा खुद से, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, यहाँ पे अगर एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो कुछ एनर्जी वो बाहर ऐसे रिलीज कर देगा, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो एंथैल्पी एंथैल्पी टर्म मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है एनर्जी ही और कुछ नहीं। एनर्जी को ही हम एंथैल्पी नाम से भी बुलाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इसको। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है ये? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, it is the amount of energy released, it is the amount of energy released when an isolated when an isolated gaseous atom gains an electron। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो कुछ एनर्जी वो रिलीज कर देगा। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है इस डायग्राम में। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ना व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? देखो, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सपोज ऐसे देखो, दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। इन HCl, HCl होता है कोवेलेंट। ओके, HCl का जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो HCl के बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। अभी क्लोरीन का एक टेंडेंसी है, क्लोरीन का टेंडेंसी है ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, इनको क्लोरीन खुद की तरफ ट्रैक कर लेता है, मतलब अट्रैक्ट कर लेता है। यही टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो जैसा मैंने बोला कि इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रादर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, तो कैसे लिखेंगे? बेसिकली इट इज द टेंडेंसी किसका? इट इज द टेंडेंसी ऑफ a bonded atom to to attract the shared pair of electron। शेयर्ड पेयर कौन सा है जो मैंने ग्रीन से मार्क किया? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब इसके खुद की तरफ जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक और चीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसको बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो का मतलब सेम, सेम इलेक्ट्रॉन अगर दो चीज स्पीशीज में होंगे तो उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मतलब द स्पीशीज containing
इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, जैसे कि एग्जांपल Na+, इनमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? इनमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है, हमको पता है। जैसे कि Mg2+, इनमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 इलेक्ट्रॉन, हमको पता है। जैसे कि F-, इनमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमको पता है। तो ये सब क्या है? दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आया समझ में? N3- ले लो, इनमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। O2- ले लो, इनमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आया समझ में? आ गया समझ में? देखो, एनी डाउट टिल नाउ? किसी को कोई डाउट अभी तक? तीर्थंकर বুঝতে পেরেছো? तीर्थंकर, आदित्य, বুঝতে পেরেছো? हाँ सर বুঝতে পেরেছি। क्षितिज को समझ में आया? हाँ सर। ओके, बाकी लोग? छागनिक? यस सर, বুঝেছি। ओके, अभी हमको पढ़ना है पीरियोडिक वेरिएशन। इसका मतलब जो जो प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हमने पढ़ा, जैसे एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल लो, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल लो, तो इनका वेरिएशन हमको अभी पढ़ना है। वेरिएशन मतलब कैसे वेरी करता है। तो नंबर 1, अच्छा पहले हेडिंग पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखो एक एक करके जो हमने पढ़ा। पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियाई। ओके, ये एटॉमिक रेडियाई अगर पीरियड वाइज, अगर हम लेफ्ट से राइट तक जाएंगे, ओके, तो ये एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? एक एक करके इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। देखो, लेफ्ट से राइट, तुम बोरॉन से ही ले लो। बोरॉन में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद नंबर 6 आता है कार्बन। कार्बन में होता है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली नहीं दिखा रहा हूँ, अब मैं जस्ट एक एक करके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 2, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, नेक्स्ट में होंगे 4, उसके बाद जो होगा उसमें होगा 5, राइट। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो सिमिलरली एक एक करके न्यूट्रॉन, सॉरी, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग एज वेल एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो प्रोटॉन का नंबर अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो अट्रैक्शन होगा, मतलब किसके किसके बीच अट्रैक्शन? न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो अट्रैक्शन, वो भी इंक्रीज करेगा। उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
मतलब जितना लेफ्ट से राइट तक आएंगे, द नंबर, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, and the number of electrons also increases. इसका मतलब द इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन will increase as well. वो एक चीज जरा गौर से देखो, ये न्यूक्लियस है बीच में जिसको हम रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जितना न्यूक्लियस बड़ा होता जाएगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, तो धीरे 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 न्यूक्लियस क्या बड़ा होता जाएगा, है ना। तो न्यूक्लियस अगर बड़ा होता जाएगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए तो साइज बढ़ेगा या घटेगा। যদি নিউক্লিয়াস আর আউটার মোস্ট ইলেকট্রনের অ্যাট্রাকশন বেড়ে যায়, ইনক্রিজ করে যায়, তাহলে সাইজ কমে যাবে না বেড়ে যাবে? কি হওয়া উচিত? होना क्या चाहिए? কে বলবে বলো? এখানে যে attraction is obviously less than this one. Here also it is less. तो যত আমরা इलेक्ट्रॉन इंक्रीज করছি, जितना हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे या फिर प्रोटॉन बढ़ाते जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट तक जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो it is quite obvious that the force of attraction of the nucleus will increase. So as a result, the size will obviously decrease. आया समझ में? কে বুঝতে পারলে না বলো, আনমিউট করো বলো। सलोनी, गुंजन, क्षितिज, समझ में आया? सर। हाँ बोलो, क्या बोले, समझ में आया? हाँ सर। ओके, क्षितिज को समझ में आया? हाँ सर। বাকিরা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ओके, now if the size increases, sorry, size decreases from left to right, क्या होगा? साइज धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। अगर साइज डिक्रीज करता जाए मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज करता जाए, तो एक चीज ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको उतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इनका जो अट्रैक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको दिक्कत होंगे। सिमिलरली इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको ज्यादा दिक्कत होगा क्योंकि और भी स्ट्रांगली बाउंड है, इसमें और भी ज्यादा, इसमें और भी ज्यादा। तो अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू लेफ्ट से राइट तक क्या हो जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। एंड दिस इज द रीजन, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो एज अ रिजल्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रहा है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, so as we move from left to right, the ionization enthalpy क्या decreases। इसके पीछे रीजन क्या बोलेंगे? वो एक ही बोलेंगे तो पिछले वाले में बोला था, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर
will increase in effective nuclear charge and the increase in effective nuclear charge will decrease the ionization enthalpy, sorry, increase the ionization enthalpy. decrease क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, increase, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। उसका मतलब एनर्जी तुमको ज्यादा देना है एक इलेक्ट्रॉन निकालने में। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली निकल जाएगा क्योंकि ये लूजली बाउंड है। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइटली बाउंड है, ये और भी ज्यादा टाइटली बाउंड है, मतलब इसको निकालने में ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो इसमें भी और भी ज्यादा हो जाएगा और फाइनली इसमें तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। आया समझ में? सो लेफ्ट से राइट में अगर तुम प्रोसीड करोगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। क्या तक आया समझ में? आ गया यहाँ तक समझ में? एनी डाउट? आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा पढ़ लिया आज ऑलरेडी। इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग में कोई जाएगा नहीं कुछ, तो आज यहाँ तक ही छोड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिन शायद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर फिनिश होके फिर केमिकल बॉन्डिंग में चले जाए। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। तो कोशिश करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में जाने की। टारगेट है तुम्हारा एग्जाम तक वो जो सिलेबस है जो मैंने देके रखा है उसको खत्म करूँ एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, स्कूल का जो क्लासेस हो रहा है फॉलो करते हो? फॉलो करो তোমরা তীর্থঙ্কর, তোমাকে তো আমি দেখি না কোনোদিনও। আদিত্যকেও দেখা যায় না স্কুলের ক্লাসে। तो क्षितिज, स्कूल का क्लास फॉलो करते हो ठीक से? ज्वाइन तो तुम करते हो ये मुझे पता है, लेकिन फॉलो करते हो? फॉलो करना है स्कूल का क्लास क्योंकि वहाँ पे भी इफेक्टिवली पढ़ाई होता है बहुत। अगर कोई ठीक से पढ़ेगा स्कूल का क्लास तो वो चैप्टर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाएगा। उसके बाद जब पढ़ोगे ट्यूशन में तो वो तो क्लियर हो जाएगा पूरा। लेकिन स्कूल का जो है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है बाद में पढ़ूंगा ऐसा कुछ मत करो। ठीक है, वो भी करो। आया समझ में? এটা কিন্তু সবার জন্যই বললাম। ওখানে এফেক্টিভ পড়াশোনাই হয়, যথেষ্ট এফেক্টিভ পড়াশোনা হয়, মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট। তো ওটাও পড়ো, ওটা পড়লে অলরেডি তোমরা একটু অ্যাডভান্সড এগিয়ে থাকবে, তোমাদেরই সুবিধা হবে পরে যখন আবার ওগুলো হবে ওগুলোকে ক্যাচ করতে। তাহলে সবকিছু আবার নতুন করে পড়তে হবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যদি পড়ে থাকো তাহলে তোমাদের ক্ষেত্রেই এটা সুবিধা। ইউ উইল হ্যাভ দ্য বেনিফিট। আন্ডারস্টুড? বোঝা গেল? ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। কিছু বলবে? না স্যার, না স্যার। Okay, so that's it for today. Thank you everyone. Let's meet at 9 a.m. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.